Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you all are fine at home. Students, welcome to the science class. Students, this is your science book which is Science Fact File 1. We are studying the chapter 1 which is Science Skills. We cover the topic what is science, what is safety, and now we are reading the topic taking measurements. Today we are going to start the topic making difficult measurements at page number 7. Students, after read or learn this topic, you are able to measure the mass of little things, volume of irregular object, and also able to measure the time of pendulum swing. So let's start to read this topic to understand the concepts and taking some measurements. Students, if you have the right instrument, measuring is usually pretty easy. However, sometimes things can be a little more difficult to measure and need thinking about. Problem 1. How do you find the mass of a single rice grain? कि आप एक चावल के दाने का mass किस तरह measure कर सकते हैं? Students, it is very difficult because the rice grain is very small. But we can measure the mass of a single rice grain by this method. Let's start. Rice grains are very light and it is very unlikely that you will have a balance that can measure very small masses. An easy way is to weigh 100 rice grains and divide their mass by 100. Students, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने 100 राइस लेने हैं, आपने उस 100 राइस का मैस मेजर कर लेना है बाय मेजरिंग बैलेंस के ज़रिए से, और उस 100 राइस ग्रेन्स का जो मैस आएगा वो होगा 20 ग्राम. आपने उस 20 ग्राम को 100 पे डिवाइड कर देना है तो आपके पास एक राइस ग्रेन का मैस आ जाएगा विच इज़ 0.2 ग्राम. इफ़ द राइस ग्रेन आर नॉट एग्जैक्टली द सेम देन 0.2 ग्राम इज़ द एवरेज मैस ऑफ वन राइस ग्रेन. स्टूडेंट्स, क्योंकि हम देखते हैं कि जो चावल होते हैं उनके दाने जो होते हैं वो कोई छोटा कोई बड़ा होता है, तो एग्जैक्टली तो हम उसका मैस नहीं है वो, लेकिन हम एवरेज में कह सकते हैं कि हर दाने का इतना मैस हो सकता है. सो वी कैन मेजर द मैस ऑफ अ सिंगल राइस ग्रेन बाय यूजिंग दिस मेथड. द सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट. Now we are going to measure the volume of an irregular shaped object. First of all, you take the measuring cylinder. In measuring cylinder, you put the some water and measure the volume of that water. Then carefully take the object which is irregular and it put into the water. Then the level of the water is rise. You measure the volume of the water. When you can taking two measurement, then you take the difference between these two readings is the volume of the object. First of all, जब हमने पहली रीडिंग ली वाटर की तो मेजरिंग सिलेंडर पे रीडिंग ली तो उसकी 50 आई, और जैसे ही हमने उसके अंदर कोई इरेगुलर ऑब्जेक्ट को रखा तो वाटर का जो लेवल था वो ज़्यादा हो गया और उसकी वजह से वाटर के जो वॉल्यूम था 70 सेंटीमीटर क्यूब आया. Then we take the difference between these two readings, we get this another readings which is 20 centimeter cube, and this reading is the volume of an irregular object. So we find out the volume of an irregular object. So problem 3, how do you time one swing of a pendulum accurately. हम किस तरह पेंडुलम की एक स्विंग को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. नो मैटर हाउ फार अ पेंडुलम स्विंग, द टाइम फॉर वन स्विंग इज ऑलवेज द सेम. हाउएवर वन स्विंग मे बी टू फास्ट टू टाइम एक्यूरेटली, बट यू कैन गेट अ गुड आंसर बाय टाइमिंग 10 स्विंग्स एंड डिवाइडिंग द रिजल्ट बाय 10. स्टूडेंट्स, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पेंडुलम जो है वो कितनी दूर स्विंग्स कर रहा है या कितने करीब स्विंग्स कर रहा है. आपने जस्ट इसके 10 स्विंग्स का टाइम नोट कर लेना है और आपने इसी टाइम को नंबर ऑफ़ स्विंग्स पर डिवाइड कर देना है और आपके पास एक स्विंग्स का क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा विच इज़ 1.5 सेकेंड्स.
Here is the calculation of problem number 3. Time for 10 swing is 15 second. Time for one swing is 15 divided by number of swings, which is 10, is equal to 1.5 second, and this is the time for one swing of pendulum. So we can find out the time for one swing of a pendulum. Now students, we are going to solve the test yourself number 2 of the chapter number 1. So let's start. Question number 1, which is what is the average mass of one nail. आपने एक नेल का एवरेज मैस को फाइंड आउट करना है. इफ़ 50 नेल्स हैव वन मैस ऑफ 200 ग्राम, यानी कि उन्होंने 50 नेल्स का हमें 200 ग्राम मैस दिया हुआ है. हमने वन नेल का मैस का फाइंड आउट करना है. तो जो हमने प्रॉब्लम नंबर 1 किया था, सेम हम उसी तरह करेंगे. सो हेयर द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टेस्ट योर सेल्फ नंबर 2. स्टूडेंट्स, गिवन डाटा हमें क्या जो दिया है वो क्या है, मैस ऑफ 50 नेल्स हमें बताया हुआ है 200 ग्राम है, और हमने मैस किसका निकालना है, वन नेल का. तो सोल्यूशन क्या है कि हमने सिंपल क्या करना है, 200 को डिवाइड कर देना है 50 पर, तो फिर हमारे पास एक नेल का मैस आ जाएगा. सो द एवरेज मैस ऑफ वन नेल इज़ 4 ग्राम. Question number 2, which is a cork float in water. Suggest how you could find volume of an irregular piece of cork. यानी कि हमारे पास एक इरेगुलर पीस ऑफ कॉर्क है और हमने उसका वॉल्यूम मेजर करना है. जिस तरह हमने प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व किया था, सेम ऐसे ही हमने इसको सॉल्व करना है. हमने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक दी measuring cylinder, then you put the some water in measuring cylinder and measure the volume of that water. Push a cork so that it is just under surface of water. आपने क्या करना है, इस कॉर्क को इस measuring cylinder के अंदर डालना है, और इस जिससे हमारे वाटर का जो इस measuring फ्लास्क के अंदर वाटर का लेवल जो है वो राइज कर जाएगा. और फिर हमने इसका क्या करना है, वॉल्यूम को मेजर करना है. Then we take the difference between these two readings and find out the volume of cork. ये हमने सेम प्रॉब्लम नंबर 2 की तरह किया है कि सबसे पहले हमने मेजरिंग सिलेंडर लिया है और उसमें हमने वाटर को ऐड किया और उसकी भी रीडिंग ली है. और रीडिंग लेने के बाद हमने क्या किया, इरेगुलर ऑब्जेक्ट जो कि हमें कॉर्क दिया गया था, हमने उसको मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डाला, और जिससे पानी का लेवल क्या हो गया था, राइज कर गया था. और हमने फिर दोबारा से इस की रीडिंग ली. तो जो 2 रीडिंग्स हमारे पास आ गई, इनका डिफरेंस ले लेना है, और डिफरेंस लेने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा इरेगुलर ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वॉल्यूम. द लास्ट क्वेश्चन इज अ बी बीट्स मैनी फुरफुराना इट्स विंग्स 250 टाइम्स ईच सेकेंड, यानी कि एक शहद की मक्खी अपने परों को 250 दफ़ा एक सेकेंड में फुरफुराती है. व्हाट इज़ द एवरेज टाइम फॉर अ सिंगल बीट ऑफ बीज विंग. जिस तरह हमने प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व किया, उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे. इसका सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखना है. हमें क्या दिया गया है, टाइम फॉर 250 बीट्स 1 सेकेंड है. एवरेज टाइम फॉर सिंगल बीट ऑफ अ बीज विंग, ये हमने फाइंड आउट करना है. Then the solution is average time for a single beat of a bee's wing is 1 divided by 250. Then get the answer of the single beat of a bee's wing, which is 0.004 second. Students, today we learn about making difficult measurements and test yourself number 2 of chapter number 1. Stay safe at your home and keep praying for your country. Thank you so much and Allah Hafiz.